Hi, sir. Welcome to the podcast. Dr. Mukund Thakur, a senior surgeon and a laparoscopic surgeon from Nagpur, a very, very prominent figure in Nagpur surgery circles. I think you have been the president of Vidarbha Surgeon Associations as well. Yeah, I was a founder president of Vidarbha Surgeons Association. Right, sir. Before I do a deep dive into what I want to talk to you about, tell me about your early days. Why did you become a doctor, and then why did you think about becoming a surgeon as well? During my schools and the 12th, I somehow developed liking towards biology, more out of compulsion that I had dislike towards the maths. Oh, So that dislike, then I had to prove that I am going to be better on this side, on the biology side. So that because of that, I started studying more the physics, chemistry, biology, because all our admissions during those days were on these three subjects marks. So mathematics, I was really weak, and I couldn't cope up with the formulas and everything. So I decided to go towards medical side, because most of the times in our childhood there were two options, either engineering or medical. And although there was no one from our family into medicine, I took up that branch out of. Then gradually I developed liking towards it, and then I pursued. but then why surgery, sir? During my undergraduate days, I learned one thing, that surgery is one branch which gives perfect results. The patient gets cured and he doesn't have to come back to the surgeon repeatedly. Whereas in other medicine branches or other branches, I saw that they would come back to you with same set of diseases throughout their life. Chronic problems. Yeah, chronic problems. So because of that, I liked that branch which had some challenges, and I liked surgical branch. And there were very good teachers during our undergraduate days, and there was certain aura around them for being very good surgeons. And that becomes an inspiration for those who like the surgical branch. Right. Was there some mentor in your MBBS whom you looked up to कि हाँ I want to follow इनका footsteps ऐसा? Yeah, during undergraduate days, we had very good teachers in our government medical college. To name some of them, Professor N.K. Deshmukh, Dr. Varsha Sakdev, Dr. Zohra Purkar, Dr. R.N. Das. He was a great surgeon. And fortunately, I had an opportunity to work with them during my surgical residency. And then watching them doing different procedures, watching their dedication towards the patients, that helped me in building up my own interest into this branch. But you know, sir, residency in surgery is a very brutal field when we looked at it. You know, there are very long hours, grueling hours. There's a lot of physical demands as well. Was there a time when you thought, Baba, hey, khub jasti hai, let me do something simpler? Actually, if you like a subject and if you choose it with your own will, then I don't think those things would become a challenge for you, because then you would look into opportunities even during those periods where true. you have to exert much more. Despite of exertion, even if during that period we did not get enough of surgical exposure. Although that was a thing, I knew that once I complete my post-graduation, I'll definitely choose the field which I like.
So there was never any problem regarding working. Even after emergencies, we used to perform. Even during emergencies, we used to perform number of surgeries, and next day also there was no off, and we used to be on the rounds by 8 o'clock. Very true. I think that grueling is necessary at times, sir. Yeah. वो polishing होता है अच्छे से. One has to go through this grinding. Yes, it's very important. And that only polishes you towards a better person, better surgeon. Because more you see, more you learn. हाँ, I mean, this is one thing my father always says. जितना करोगे उतना सीखोगे. Yes, बिल्कुल बराबर है. हाँ. So, laparoscopy in early 2000s was a very early scene, sir. And Yes. आपने ऐसा क्यों सोचा कि I will commit to laparoscopy when all the other surgeons mostly open कर रहे थे? What was the thinking process? मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 90s में कंप्लीट किया 1990 एंड देन आई वेंट टू दिल्ली. ऑल ऑफ माय बैचमेट्स ड्यूरिंग दैट टाइम यूज्ड टू गो टू मुंबई फॉर रेसिडेंसी. आई वेंट टू दिल्ली टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर, एंड वहाँ पे मैंने लगभग 2 साल काम किया under different consultants. Some of them were excellent in their surgery, some of them were very average, and some of them were mediocre. But I got to see number of hands which were good, moderate, and very bad. So even from a bad surgeon, you can learn a few things. What not to do. Yeah, that is very important. Very important. And the crux of surgical practice is to make a decision and right decision. Very true. Surgical skills you can develop by watching different people, attempting different surgeries, and discussing with your seniors, superiors, and your colleagues. तो वहाँ से फिर I came back to Nagpur in 92. I joined Government Medical College as a lecturer. But then I had no intention of continuing into the job or government job. So I never applied for the MPSC seat. And one day I knew that I'll have to be back into the practice. So I had started looking for the place. तो वो होने के बाद फिर अराउंड 93 मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की. तब मेरे पास कुछ भी जगह भी नहीं थी, बट आई वॉज लकी टू फाइंड ए प्लेस एट रविनगर स्क्वायर, सेनगुप्ता हॉस्पिटल. मैडम वॉज काइंड इनफ टू अस टू अलाउ यूज़ देयर फैसिलिटी, यूज़ देयर कंसल्टेशन चेम्बर. तो धीरे धीरे वहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ते गई. फिर लैप्रोस्कोपी, when I left Delhi, the laparoscopy boom had just begun there. अच्छा, वहाँ हो गया था. वहाँ शुरुआत हो गई Right, थी. right. And the consultants with whom I used to work, they had started going for the training of laparoscopy. When I came back, Nagpur में there were 1 or 2 surgeons doing laparoscopic procedures, but the type of procedures were not very advanced. Basic surgical procedures were being performed. So I decided to take a proper training into laparoscopy. And उसमें क्या होता है कि एक दफ़ा तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो यू कैनॉट टेक ऑफ लॉट ऑफ टाइम. ब्रेक नहीं ले सकते. ब्रेक ज़्यादा नहीं ले सकते. पर फिर मैंने क्या किया कि वीकेंड्स पे छोटे छोटे कोर्सेज करना शुरू किया. एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ट्रेनिंग फ्रॉम डॉक्टर जॉन थनाकुमार एट कोयम्बटूर. Right. And he graciously accepted and gave me a fellowship of about 3 to 4 weeks. So I stayed there at Coimbatore, and he used to perform all advanced surgical procedures. मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर मैं वापस नागपुर में आता हूँ और मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो मैं शायद वो इक्विपमेंट लूँगा भी नहीं और मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगा.
सो मैंने उसी समय कोयम्बटूर में ही एक एजेंसी को पकड़ के उसके पास मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर दे दिया, और नागपुर में आके फिर मैंने आई जस्ट वेटेड फॉर दैट ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड. इट टुक 3 months फॉर दैट ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड. और the instruments were not very freely available during that time. The light source and everything was very basic. So, but then with the help of my parents, because they also wanted me to be a practitioner only. तो मेरे पिताजी उस समय मेरे पीछे लगते थे कि नहीं आप जॉब नहीं करोगे. तो मैंने फिर वो सेट एक्वायर किया. Then I purchased my own place in Dharampet initially, which was a 7-bedded hospital, very small place. पर वहाँ पे मैंने लैप्रोस्कोपी करना शुरू कर दिया. और फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर ऐड होती गई. Attending conferences helped me a lot. Working and interacting with seniors and the skillful surgeons helped me a lot. Gradually मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ ना कुछ प्रोसीजर मैं 2 या 3 महीने में ऐड करता रहूँगा. तो वैसा ही होता गया gradually. Then around 2000 I shifted to a bigger place at Shivaji Nagar, which was Zenith Hospital. तो जेनिथ हॉस्पिटल में फिर हमने एक टीम बनाई थी जहाँ पे मेरे साथ में ऑन्को सर्जन थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, एंड वी यूज्ड टू लव वर्किंग विथ ईच अदर, असिस्टिंग ईच अदर, इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. और तब तक हमारे पास एडवांस्ड सेट्स वगैरह सब आ गए थे. और फिर मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की, ग्रो की, और धीरे धीरे मुझे इधर उधर से बड़े हॉस्पिटल से कॉल्स आने लग गए. तो शुरुआत में तो वही होता था लैप्रोस्कोपी में कि अपना अपना सब सामान लेके जाओ, बोरा बिस्तर कार में लोड करो और जाओ अलग अलग जगह पे ऑपरेशंस करो. पर वो मुझे ये एक बात समझ में आ गई थी कि ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है. Because number of places where I used to go, they started purchasing those equipments. So I decided to go for all advanced equipments. And then I purchased 3D laparoscopy camera. And working with 3D camera was totally a different experience. और उसमें भी my whole aim was to enjoy surgical procedures. That is very important, sir. Unless you enjoy what you are doing, you cannot take interest. बराबर. तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम यार जो नया दिखा तुम ले लेते हो. तो उस समय मेरे पास एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज थे, 3D लैप्रोस्कोपिक कैमरा था, और बेसिक सी कार थी मेरे पास. बट देन मेरा एक पूना का फ्रेंड था, तो हमारी ऐसे ही बात होती थी. तो उसने एक दिन मुझे बोला कि मैं अभी BMW लेने वाला हूँ. मैंने कहा ले लो आप, तुम क्यों नहीं लेते, मेरे से पूछा उसने. मैंने कहा मैं रोज़ तो BMW में बैठ के ही तो ऑपरेशन करता हूँ. सो BMW में मैं जितना समय नहीं बिताऊंगा उससे ज़्यादा समय मैं ऑपरेशन थिएटर में बिताता हूँ. वेरी ट्रू. सो आई शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन द ऑपरेशन थिएटर. ट्रू ट्रू. सो दैट वाज माय आइडिया ऑफ प्रैक्टिस. राइट सर. तो ऐसा वो आगे होते गए, प्रोसीजर्स होते गए, इधर उधर से लोग मेरे पे विश्वास करके पेशेंट्स भी आते गए, और अलग अलग डॉक्टर से मुलाकात हुई. I used to make sure that whosoever doctor refers me a case, he should stand in my operation theater. Oh, okay. Yeah. Because initially what happened, एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा. एक मेरा जब धर्मपेट में हॉस्पिटल था तो एक फैमिली का कुछ गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना था.
तो मुझे उसके ससुर ने डायरेक्ट पूछा कि ऑपरेशन आप करने वाले हो कि कोई और आने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें बताया गया है कि नागपुर में 1 या 2 लोग ही, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड डेज, तो 1 या 2 लोग ही ये ऑपरेशन करते हैं। तो देन आई रियलाइज्ड कि देयर इज़ डिफरेंट परसेप्शन अमंग जनरल पब्लिक कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं वैसे तो किसी को अलाउ नहीं करता हूँ, बट आपको ज़रूर बुलाऊंगा ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने उनको बुलाया भी, मैंने दिखाया भी सब प्रोसीजर्स। उतना उनको कितना समझा क्या समझा मालूम नहीं, बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस पर्सन was so happy to be inside, and he came to know different things about the surgery. क्या intricacies रहती है उतना तो उसको नहीं समझा होगा, but then I realized कि unless I gain confidence of people, I won't be able to get the patients. So this was a trust building exercise ने Yes, दिया ना? it was a trust Very building true. exercise. Very Yes. true. But I want to get you back to early days of laparoscopy, sir. Yeah. कि as a surgeon who is mostly trained in open surgeries, ते transition करने में कितना, how difficult is the transition happening? Actually, Even for the young students today who will go for laparoscopy, अभी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ करिकुलम, right? है ना। तो अभी आज की तारीख में जो भी फ्रेश MS होके बाहर निकलता है, ये ऑलरेडी नोज अबाउट बेसिक एंड एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स विच आर बीइंग डन लैप्रोस्कोपिकली। बट हमारे टाइम में ऐसा था कि एक तो मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत ही बेसिक कैमरा सिस्टम्स थे, सिंगल चिप कैमरा, देन halogen light source which was a yellow light source, and to work with those instruments, very basic instrument, was real challenge. Sorry. तो ग्रेजुअली जैसे मैंने एक रियलाइज़ किया कि हमारी लैप्रोस्कोपी करने के लिए हमारा जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। True. तो मैं अब वो ट्रेनिंग के लिए वो एनिमल मॉडल्स, देन दी अदर थिंग्स, दे आर डिफ़िकल्ट टू एक्वायर एंड They're costly also. दे आर वेरी कॉस्टली। तो मैंने ये बात हमारे स्टाफ से की कि अब देखो, आज तक हम ओपन ऑपरेशंस करते थे, बट ये इसके आगे हमको यही ऑपरेशन इस तरह से करने हैं। तो शुरुआत में तो मैं भी सीख ही रहा था, मेरे स्टाफ को भी उसी तरह से सिखाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली फिर उनको भी समझ में आ गया कि मेरे को एक्चुअली सर्जिकल फील्ड में मैं क्या देखना चाहता हूँ, कौन सा ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर दिखाना है जिसमें से ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ स्टाफ लोग सब काम करते गए, तो उस समय आपको पता था मालूम नहीं, बट उस समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ सिस्टर्स भी नहीं मिलते थे। तो हमको जो अवेलेबल सिस्टर्स है, मोस्टली सर्जन्स ही उनको ट्रेन करते थे। ट्रेन करते थे। आई नो। तो ये धीरे धीरे वो लोग भी सीखते गए, और मेरे को इनिशियल चैलेंजेस थे, पर अब जैसे मैं इधर उधर जाके भी ऑपरेशंस करता, तो हर समय मेरे स्टाफ को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर वहाँ पे जो भी स्टाफ अवेलेबल है उनके साथ में मैं काम करता था, तो वह आदत सी हो गई, और फिर उसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने इनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल्दो दे वेर नोवाइज, आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज पीपल। बट सर, व्हाट हैपेंस इज, कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल फैमिली, मैंने बचपन में काफ़ी सर्जन्स को देखा हूँ, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, आई हैव वेरी डिस्टिंक्ट मेमोरीज की सर्जन्स की एक OPD होती थी, एंड उनका 1-2 हॉस्पिटल्स में अटैचमेंट्स रहता था। बाय एंड लार्ज आज भी बहुत जगह यही होता है, बट यू डिसाइडेड कि कभी तो भी नहीं, अभी बहुत हो गया, आई वांट टू स्टार्ट हैव माय ओन प्लेस एंड हैव ग्रो इट अकॉर्डिंगली, एंड हेंस ज़ेनिथ हॉस्पिटल was established. What were you thinking at that point of time, sir? Before Zenith Hospital,
or even when I started my practice, I knew surgeon cannot practice at a chamber. क्योंकि सर्जन के पास कौन से समय क्या पेशेंट आएगा, कैसे इमरजेंसी आएगी और उस समय उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर हॉस्पिटल का बैकअप नहीं है तो वो आई डोंट थिंक ही कैन डू जस्टिस टू वॉट एवर ही हैज़ लर्नड एंड ही कैनॉट डू जस्टिस टू द पेशेंट्स. तो अगर मैं चेंबर में बैठता हूँ और मेरे पास एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है तो मैं उससे क्या कर लूँ? कुछ नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकता. सो आई एंश्योर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट आई विल प्रैक्टिस ओनली एट ए हॉस्पिटल. दैट्स व्हाई आई जॉइंड सेनगुप्ता हॉस्पिटल शुरुआत में. जब मैं नागपुर में आया, मैं कभी भी सिर्फ चेंबर के फिराक में पड़ा ही नहीं. मेरे को मालूम था कि मुझे अगर प्रैक्टिस करना है तो मुझे हॉस्पिटल का बैकअप होना ही चाहिए. अगर मुझे रात को लगता है 12 बजे मुझे पेशेंट लेना है तो मैंने यू शुड हैव दैट फ्रीडम. यस. ट्रू. सेकेंडली, अगर कहीं बाहर गांव से, उस समय ये होता था कि बाहर गांव से काफ़ी पेशेंट्स ऑड आवर्स में आते थे, मैं उनको चेंबर में तो बुला ही नहीं सकता. सो आई हैड टू हैव ए प्लेस वेयर आई कुड कॉल देम एंड एग्जामिन देम एंड इफ रिक्वायर्ड डू अ नेसेसरी प्रोसीजर एट ऑड आवर्स इन द नाइट. तो ये तो पक्की थी बात कि हॉस्पिटल के साथ ही प्रैक्टिस करना है. तो इसीलिए जब मैंने सेनगुप्ता से शिफ्ट हुआ धर्मपेट में, तब भी मैंने, ऑल्दो इट वाज ए स्मॉल हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल के साथ ही किया था जो भी किया था. और उससे फिर आगे बढ़ना था तो फिर ज़ेनिथ हॉस्पिटल वाज ए बिगर स्टेपिंग स्टोन इन माय करियर. क्योंकि उस समय मैं उस एरिया में प्लेस भी ढूंढ रहा था और लकीली ये अवेलेबल हो गया तो मैंने वहाँ पे शुरू भी कर दिया. सो सर्जिकल प्रैक्टिस ये हॉस्पिटल के साथ ही होना चाहिए, ये तो मेरा बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर था. इसलिए मैंने वो ज़ेनिथ हॉस्पिटल भी शुरू किया. राइट सर, दिस इज फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पर एक हॉस्पिटल के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक. यस. इवन बिफोर दैट there you require a lot of funds initially to even set up a hospital. So what were your thinking, what were your calculations at that point of time, sir? जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, जब मैं सेनगुप्ता हॉस्पिटल ज्वाइन किया मैंने, तब माय फादर वाज ए गवर्नमेंट जॉब होल्डर. तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस वगैरह नहीं था हमारे पास. पर जो भी मैंने 7 साल सेनगुप्ता हॉस्पिटल में गुजारे, उसके बाद एक थोड़ी सी हिम्मत भी आ गई थी कि मैं अभी कुछ तो कर सकता हूँ. उस समय पता नहीं, महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में समीर, टेकिंग ए लोन वाज ए टैबू. तो पता नहीं ये कल्चर हमारे यहाँ भी था थोड़ा सा. पर मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि अभी आगे बढ़ना है तो हमको लोन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते. तो धर्मपेट में मैं जब शिफ्ट हुआ तो आई टुक माय फर्स्ट लोन अराउंड 2000. और फिर रियलाइज़ किया कि अगर मैं प्रैक्टिस सिंसियरली करता हूँ, ध्यान दे के करता हूँ, तो ये लोन को रीपे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो प्रैक्टिसिंग फॉर 10 years एट धर्मपेट गेव मी फर्दर बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस. तो इसलिए फिर मैंने जब ज़ेनिथ हॉस्पिटल शुरू किया तब लोन लेना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. पहला लोन के लिए तुमको दिक्कत होती है, तुम्हारा क्रेडेंशियल्स प्रूव करने पड़ते हैं, तुम्हारी रीपेइंग कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ती है. एंड वंस यू रीपे दैट लोन तो फिर फाइनेंसर्स आपके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं. तो दैट आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड माय ज़ेनिथ हॉस्पिटल. राइट. तो उस समय लोन लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी. तो मैंने इन्वेस्ट भी किया और लोन भी लिया. ग्रेजुअली सब. एंड देन 2000 आई थिंक ज़ेनिथ वाज एस्टैब्लिश्ड ना. आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स. 2000 में मैंने सर्जी केयर क्लिनिक शुरू किया था. ओके. एंड 2010 ज़ेनिथ हॉस्पिटल स्टार्टेड. ओह ओके.
Okay. And around 2020 Viveka Hospital started. And then 22 में sir you got अभी recently you got the first 3D laparoscopic machine in central India. 3D laparoscopy machine I purchased in 2014. 14. Okay. Yeah. So, it was at Zenith Hospital. I Right. purchased first 3D laparoscopy machine. so आपके आसपास के बाकी फ्रेंड सर्कल के सर्जन्स क्या बोल रहे थे? नहीं वो तो अब हर चीज़ का you interact with people who criticize your actions or appreciate your actions. Obviously. मिक्स मिलता है दोनों का. तो 3D laparoscopy मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इट वाज ए रिसेंट टेक्निक विच वाज रिसेंट गैजेट ब्रॉट अप बाय कार्ल स्टोर्स. और तब तक मैं कार्ल स्टोर्स के ही कैमरा यूज़ करना शुरू कर चुका था. तो इवन कार्ल स्टोर्स वांटेड पीपल हु वुड बी कीन on doing procedures on their 3D vision. So I realized when I worked on the demo models of this 3D laparoscopy cameras, I realized that the depth perception and the accuracy of your dissection is much better on 3D vision. तो मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए फिर मैंने वो कैमरा भी ले लिया. एंड आई थिंक आई हैव वर्कड, दैट कैमरा इज स्टिल फंक्शनिंग एट माई प्लेस एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट. उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनकी कुछ अलग टाइप की डिमांड्स होती है. दे वांट ए बेटर ambience of the hospital and they want some better facilities apart from getting operated from a skilled surgeon. So मैंने सोचा कि ये अब जेनिथ में देना पॉसिबल नहीं है. तो देन हमने एक 7-8 डॉक्टर्स के ग्रुप ने विवेका हॉस्पिटल शुरू किया. एंड विवेका हॉस्पिटल में फिर हमारे लिए ज़्यादा फ्रीडम हो गया काम करने का, क्योंकि उसमें फिर मेरे साथ और सर्जन्स जुड़ते गए और हमारी एक बड़ी टीम बन गई जिसमें फिजिशियंस भी थे, कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, न्यूरोसर्जन्स भी थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी थे. एंड द बेस्ट पार्ट वाज we had control of all the hospital working in our hands. Although we are not very directly involved in day-to-day activities of the hospital, पर हमारे पास एक फ्रीडम था कि पेशेंट्स को हम किसी मतलब कोई भी सर्जरी अगर हम चाहते हैं तो हम वहाँ पे कर सकते हैं. हमारे को रिफ्यूज़ करने के लिए कोई स्कोप नहीं है अभी. राइट. पर सर एक आई वांट टू टॉक अबाउट अ थिंकिंग शिफ्ट जो होती है. एक सर्जन, आपकी इतने साल की ट्रेनिंग हुई है कि ऑपरेट करो एंड यू हैव परफेक्टेड दैट स्किल ओवर द ईयर्स फॉर द लास्ट 40 ईयर्स. सडनली एक हॉस्पिटल आ गया, देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिन काम, बिलिंग हो गया, स्टाफ, ऑपरेशंस. You start thinking from a business point of view also. You have to. When you're making that kind of an investment, your thinking has to completely switch. Yes. तो उसके बारे में सर प्लीज थोड़ा सा लेट अस नो. देखो ऐसा है कि अगर हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं तो हमको हर चीज़ अच्छी ही इस्तेमाल करनी है. तो हमारे ओटी के गैजेट्स, ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी का स्टरलाइजेशन, दी CSSD पार्ट, ये सब परफेक्ट होगा तो ही हम रिजल्ट्स दे सकते हैं. यू आर ऑल्सो ए ऑफ्थाल्मिक सर्जन एंड आप लोगों का तो ऐसा है कि थोड़ा सा भी गलती हो गया तो वो सीधा सीधा आई विजन जाने पे बात आ जाती है. A lot of people will agree when I say ophthalmic surgeries are very non-forgiving. Either वो अच्छा होगा ना वो नहीं होगा. There is no in between. There is no in between. तो वैसे ही हमारे इसमें भी है, क्योंकि क्या है, एक सर्जन सेटिस्फाई होके अगर गया तो एक पेशेंट अगर सेटिस्फाई होके गया तो आपका
मतलब he'll tell 10 of his friends. He becomes a brand ambassador. Yeah, brand ambassador. एंड अगर एक चीज़ में किसी के हाथ से, स्टाफ के हाथ से, मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाती है तो वही चीज़ हमारे ऊपर बूमरैंग भी कर सकती है. तो यहाँ वो हेल्थ केयर में वो स्कोप नहीं है. आप देखो, आपकी बिल्डिंग जब बनते रहती है, अगर बनते बनते एक आध वॉल ख़राब हो गई तो वो वॉल गिरा के दूसरी वॉल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी में वो नहीं हो सकता. तो आपको हर चीज़ बहुत सोच के ही करनी पड़ती है. अब ऐसा है, दी अपार्ट फ्रॉम दिस, द पॉइंट विच यू हैव आस्क्ड अबाउट द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलिंग, insurance, empanelment, everything. You need a very different mindset for it, sir. How did you make that mindset? मेरे को वो जानना है. धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है. राइट नाउ इट इज़ अराउंड 50% In Nagpur. in Nagpur. Oh, Yes. that's very good penetration. Yes. Very good penetration. तो अगर मैं इंश्योरेंस का कंपनी का हर काम ऑनलाइन होता है एंड इट्स ए क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग जॉब. तो मैंने उसके लिए फिर ट्रेंड लोगों को हायर किया एंड इनिशियली मैंने उनको गाइड भी किया कि हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं और उसमें कैसे बिलिंग होनी चाहिए. धीरे धीरे वो लोग भी सीख गए. अभी मुझे उसमें ज़्यादा ख्याल नहीं देना पड़ता है. सेकेंडली, अबाउट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम रियली लकी दैट माई वाइफ मंजीरी, हु इज़ ए डेंटिस्ट, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह हैंडल करती है. और मुझे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अपकीप ऑफ हॉस्पिटल, उसमें मुझे कहीं भी अच्छा, ख्याल नहीं देना पड़ता है. that you're privileged. That is because I am privileged. Actually, she is also a MDS in oral pathology. Right. And she is inclined, she already has her own practice, but she is also inclined towards teaching. So उसके पास एक कॉलेज में प्रोफेसर थी वो अपने डिपार्टमेंट में. पर मैंने उसको बोला कि अगर आप वो कॉलेज छोड़ के हॉस्पिटल के तरफ ध्यान देते हो तो मेरा कुछ समय मैं अपने प्रैक्टिस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट. आपका जितना टाइम फ्री हुआ, the more you operate, the more you make money, obviously. At the same time, you can have your own clinic at the same premises. So graciously she agreed for all this. It is very difficult. Very difficult. Very difficult. किसी को ऐसे बोलना और उसने एक्सेप्ट करना. तो आई वॉज लकी इन दैट मैटर. तो मुझे हॉस्पिटल के बिलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है. मैं पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि मेरा काम केवल ऑपरेशन करना है, बाकी आपको जो जो पूछना है वो सब आप रिसेप्शन में पूछो, अकाउंट्स में पूछ लो. Lovely. Very nice. सर, तो व्हाट इज़ वन पार्ट ऑफ ओनिंग अ हॉस्पिटल जो आपको ओन करने के बाद ही पता चला, अरे बाप रे, ये पड़ा है सब. हॉस्पिटल खुद का शुरू करने के बाद सबसे पहले एक चीज़ पता चलती है कि तुमको बहुत सारे सैंक्शंस, परमिशंस लेने हैं. और ऐसी बात भी हुई कि पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ हादसा रिपोर्ट होता था. हॉस्पिटल में आग लग गई, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो द नॉर्म्स बिकेम ग्रेजुअली मोर स्ट्रिंजेंट. इनिशियली दोज नॉर्म्स वेर, although maybe they were existing, but they were not being followed very rigidly. बट जैसे जैसे ये वाक़या होते गए वैसे वैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन, दे बिकेम मोर स्ट्रिंजेंट. एक प्रकार से हमारे लिए वो अच्छा ही था कि एटलीस्ट दे मेड अस टू वर्क एट ए प्लेस विच इज़ सेफर फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज फॉर our own living also. क्योंकि
अब देखो हमारे हॉस्पिटल में भी जितने भी लोग काम करते हैं दे आर ऑल्सो एट ए रिस्क. अगर कुछ हादसा हो जाता है तो 100%. वो भी दे आर ऑल्सो एट ए रिस्क. तो ये चीज़ें तो बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग गई. पर वो एक और चीज़ होती गई कि उन्होंने उसके लिए अपग्रेड करने के लिए समय भी दिया और बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली हमने ऐड ऑन भी करी. अब तो ऐसा है कि हॉस्पिटल अगर किसी को शुरू करना है तो शुरुआत में ही देयर इज़ लिस्ट ऑफ अबाउट 80 ऑड परमिशंस वन हैज़ टू टेक. तो ये धीरे धीरे समझते गए हम लोग प्रैक्टिस में आने के बाद. तो वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था. अनदर थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज दिस NABH सैंक्शनिंग. Crazy. इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट. बट मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं जो भी होता है, मुझे याद है कि शुरुआत के दिनों में उसका रिकॉर्ड रखना कोई सीरियसली नहीं लेता था. और इतना हैफेज़र्ड वो रिकॉर्ड रखा जाता था. किसी का कुछ अगर 3 साल पुराना रिट्रीव करना है तो बिग हेडेक. तो एटलीस्ट NABH के लिए जब हमने अप्लाई किया और NABH हमारा बेसिक एंट्री लेवल का हो गया तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ऑल्दो द पेपर वर्क हैज़ इंक्रीज्ड. जैसे ही पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हो जाता है 16 पन्ने का एक उसका केस शीट बन जाता है. वेरी ट्रू. एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग. बट देन आई रियलाइज्ड कि हमारे रिकॉर्ड के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है. पेशेंट्स अगर आपके पास आया है, आपने वर्बली बोल दिया सिस्टर को कि इसको एडमिट कर लो, ये ट्रीटमेंट शुरू कर दो, नथिंग इज़ ऑन द डॉक्यूमेंट. रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं. आपने क्या डायग्नोस करके एडमिट किया था, उसको क्या मेडिसिन देना चाहिए था, आपके उस एडमिट करते समय क्या फाइंडिंग्स थे, ये इसका रिकॉर्ड ही नहीं होता था कहीं. अब वो होने लगा है. तो इन ए वे इट हैज़ हेल्प्ड अस ऑल्सो टू कीप बेटर रिकॉर्ड्स. क्योंकि आई टच टू ए वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट दिस पॉडकास्ट पे. अच्छा. We have talked about this. A lot of doctors, I mean, senior doctors as yourself, they say कि यार we have seen the transition from the trust the people have in a doctor to आजकल CME में बात होती है कि treat every patient as a potential litigant. Yes. कितना खराब हो गया है. सब खराब हो गया है. बट उसके लिए everybody is responsible. दोनों साइड्स everybody जिम्मेदार है. तो बट एक चीज़ मेरे ख्याल में आ गई कि ये रिकॉर्ड रखने से आपका नुकसान कुछ नहीं है. ऑल्दो इट एड्स टू योर एफर्ट्स और इंट्रिकसीज, बट वो रखना भी चाहिए. नाउ वी आर लीगली बाउंड टू कीप द रिकॉर्ड फॉर 7 years. तो एक अच्छी बात है. वो NABH के लिए जाना भी एक अच्छी बात है. सर, लुकिंग बैक एट फर्स्ट ईयर ऑफ ज़ेनिथ, what went wrong? Retrospectively, obviously. Yeah. ज़ेनिथ हॉस्पिटल का एक लिमिटेशन तो है ही. मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था. शुरुआत में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक लिमिट तक ही हम इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं. Beyond that, I'll need support of different specialties. So, although nothing went wrong, but एक छोटी जगह में सब स्पेशलिटीज़ को अकोमोडेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. Very difficult. So, maybe that I could not do at Zenith Hospital. और उसके कुछ माइनस पॉइंट्स है. अब इफ़ यू ट्रीट पेशेंट एज ए होल, एक सर्जिकल पेशेंट, ऑपरेटेड पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसीज आना बहुत आम बात है. तो ऐसे पेशेंट्स को फिर वी हैव टू शिफ्ट एट डिफरेंट प्लेस. जैसे वोखाट हॉस्पिटल है, विवेका हॉस्पिटल है, या
ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल उस समय था। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको अलग अलग जगह में शिफ्ट करना पड़ता था। Now you have in-house mostly चीज़ें. Yeah, mostly in-house है, but we have a bigger setup in the form of Viveka Hospital Obviously. for that. तो अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे आई वांट द पीपल टू अंडरस्टैंड कि यू नो एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी, यू नो देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, पेशेंट टेबल पे है, इंड्यूस कर दिया एनेस्थेटिस्ट ने. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड बिफोर यू स्टार्ट? Complex surgery, I'll take an example of a patient. गो फॉर इट. I do lot of thoracoscopic procedures also. तो एक समय एक पेशेंट हमारे पास आया था, लेडी थी, एंड उसका एक्सरे मैंने देखा, तब उसमें देयर वाज ए ह्यूज शैडो विच सजेस्टेड कि चेस्ट में दोनों तरफ कोई बड़ा सा ट्यूमर है. अब उसका सीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि वो ट्यूमर दोनों साइड का मिला के एक ही ट्यूमर है, एंड इट वाज एक्सटेंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द चेस्ट बाय क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन स्पाइन एंड एओर्टा. ओहो. थोरेसिक एओर्टा और स्पाइन के बीच में से जगह बना के एक उसका डंबल शेप था. एक मास उसका राइट साइड में था और एक मास उसका लेफ्ट साइड में था. अब हमको ये ट्यूमर अगर निकालना है तो हमको दोनों तरफ का चेस्ट ऑपरेट करना पड़ रहा था. सो हमारे जो सर्जिकल कलीग है उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि लेट अस अटेम्प्ट दिस प्रोसीजर विथ थोरैकोस्कोपी. तो दे वेर ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंस्ड. मैं बोला शुरू कर देते हैं, अगर कुछ करना पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा. तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लकीली व्हेन वी स्टार्टेड आई फाउंड दैट it was not so difficult to dissect this part of tumor on one side. So I finished dissection on one side and transected the tumor on that side into one side of the chest and removed it by making smaller pieces. Then I approached the other side through 3 holes on the other side, and I finished the dissection. The most challenging part was the dissection between aorta and the spine. And literally I tell you, उस समय हमारे पसीने छूट गए थे क्योंकि there was a direct twig arising from aorta to this tumor and supplying to it. एडिशंस नहीं बने थे ना? Adhesions we could separate. हाँ. But blood supply को एड्रेस करना वॉज ए चैलेंज. ऑब्वियसली. क्योंकि वहाँ पे इतनी कम स्पेस थी कि हम लोग क्लिप भी नहीं लगा सकते थे. और समहाउ वी यूज्ड ए हीमोक्लिप एंड उसको ब्लड सप्लाई कट ऑफ किया एओर्टा से, एंड वी कुड सेपरेट इट फ्रॉम द एओर्टा एंड डिलीवर इट. It took about 4 to 5 hours. But then I realized कि ये हो सकता है. So do you document? You must be documenting cases, ना? All those cases are documented. I have published it. बढ़िया. तो ऐसे ही फिर यही होता है कि सर्जिकल प्रैक्टिस में कोई अपने को पहले से सिखा के नहीं आता है. Once you start attempting difficult cases, the simpler cases become और सिंपल हो जाता है. और सिंपल हो जाता है. So ऐसा ही सर, was there any other case that humbled you? Yeah. Not necessarily a failure, but the case that taught you, बाबा अपना लिमिट इधर ही है अभी, ऐसा कभी हुआ है? So now I need to either break my limit or stop here. ऐसा कभी नहीं, ब्रेकिंग लिमिट का तो see the crux of surgical practice is you should challenge your own performance. Exactly. So breaking limit has to be there. That attitude of breaking limits has to be there. True. Otherwise आप प्रोग्रेस नहीं हो सकते. नहीं possible. अब एक पेशेंट था जिसका when he came to me, he had advanced stage CA esophagus.
और हम उसका रूटीन स्कैनिंग कर रहे थे तो एक और मैलिग्नेंसी उसको डिटेक्ट हुई, दैट वाज इन हिज सिग्मॉइड कोलन। अब हमको इसोफेगस भी ऑपरेट करना था, वो सिग्मॉइड कोलन भी बट करना दैट था। वाज मेटास्टेसिस की वो नहीं थिंग ऑल दे टुगेदर। वर टू डिफरेंट मैलिग्नेंसीज। Very rarely you see Very such. Very rarely you rarely see you see this such. Very true. type of patients. तो एक ही सिटिंग में दोनों एक ही सिटिंग में हमने दोनों किया था एंड इसोफेगस हमने ट्रांस एब्डोमिनली किया था और sigmoid operating sigmoid malignancy was not very difficult, but we could finish that. Patient had advanced malignancy, so we knew what his fate is going to be. But he lived for 3 years and good enough. yeah, good enough. तो ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं और the idea is to keep on discussing with your surgical colleagues and try to find out solutions for these patients, because अगर हम उनको यहाँ पे कोई solution offer नहीं करते तो वो ये सिटी छोड़ के either they will go to हैदराबाद और मुंबई and somebody will definitely offer them a solution. बराबर. तो ये अगर हमने नागपुर में नहीं ऑफर किया तो we are lacking somewhere. But speaking of Nagpur, don't you think the last 10-15 years में the kind of hospitals or services medically available हो रही है in Nagpur, a lot of crowd that goes to south from the north नागपुर में ही रुक रहा है. हाँ, बहुत सारा क्राउड नागपुर में ही है अभी. Right. नॉट ओनली दैट, हमारे नागपुर में आसपास के एरिया के पेशेंट्स बढ़ गए हैं. Exactly. एक्चुअली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बॉर्डर लाइन आंध्रा, all those patients are now preferring to get treated at. Very true. सर आप bariatric surgery भी करते हो. Yes. So what is the, I think, is the incidence of bariatric surgery increasing for since so many years? बेरियाट्रिक सर्जरी का इंसिडेंस अभी स्लाइटली डिक्लाइन हो रहा है. आप पोस्ट कोविड. पोस्ट कोविड बोलो या नाउ देर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. बलून्स. देर आर डिफरेंट बलून्स, बलून ट्रीटमेंट और अभी तो GLP-1 थेरेपी आ गया है. ये नए नए मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसके कारण बेरियाट्रिक सर्जरी का जैसे मोंजारो है, ओजेम्पिक है, ऑल दोज इंजेक्शंस आर रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी एज अ होल. राइट सर. So sir, even with such a busy schedule, hospital, the management side, the admin side, ठीक है, few things are taken care of. आप टीचिंग का भी टाइम निकालते हो. You take webinars, you train young surgeons as well. How do you do that? मतलब टीचिंग अगर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर टीचिंग नहीं रहा तो हम हमारे जो भी स्किल्स है, जो भी थोड़ा मोड़ा हम लोग जानते हैं, वो आगे कैसे पास ऑन करेंगे. अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो खुद होके आके सीखेगा. अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट जगाना हमारा काम है. तो इसलिए फिर मैं छोटे मोटे कोर्सेस लेते रहता हूँ कि बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में यंग सर्जन्स अप्रोच करते हैं कि सर आपका ये प्रोसीजर हमको देखना है, तो मैं उनको अपने यहाँ बुला के एक दिन उसी टाइप के ऑपरेशंस रख के फिर उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो जाता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. राइट. क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि अगर मेरे पास वो देख के जाता है तो ही शुड गो बैक एंड परफॉर्म द सेम सर्जरी एट हिज ओन प्लेस. हाँ, तभी तो वो परफेक्ट तब होगा. वो टीचिंग का कोई मतलब है. वर्कशॉप्स में what are the things आप सर्जन को नहीं सिखा सकते वर्कशॉप में? Something that comes only with time as a surgeon. As a laparoscopic surgeon, the most important thing to learn is the patience. Patience. You cannot be impatient and be a good laparoscopic surgeon. ऐसे नहीं हो सकता. तो सबसे पहले तो उनको पेशेंस ही सिखाता हूँ कि you watch different people. As I said initially भी मैं
अच्छे सर्जन्स को भी वॉच करता था, खराब सर्जन्स को भी वॉच करता था, एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स विच यू आर लैकिंग. इफ यू गो टू ए कॉन्फ्रेंस, if you are watching somebody else operating, then try and replicate those steps into your surgery, or try to learn the steps which you find difficult during your surgery. I remember something, sir. मेरे जो mentor थे, मेरा जो boss था when I was doing residency, so we had a rule. First 3-4 months तो OPD में ही रहने का, you are not allowed to enter the OT. And I worked in a very high volume सेंटर, मतलब रोज की 200-250 सर्जरीज होती थी. बाप रे, कहाँ पे थे आप? पुणे सर, HV देसाई हॉस्पिटल. सो व्हेन वी वेंट इनटू द OT, फर्स्ट 2 months you are only in the block room. And we used to start OT at 9 o'clock and finish at 2 o'clock. 250 surgeries done. Very high volume center. बाप रे. तो हमारा काम होता था कि you have to keep supplying blocked patients बाहर. अच्छा. तो द स्पीड एट विच वी वर गिविंग ब्लॉक्स एकदम परफेक्ट हो गया, है ना. तो देन व्हेन वी वेंट इनसाइड OT में, नाउ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दूसरा सर्जन्स. तो माय बॉस सेड सर्जरी मत देखो, हाउ द सर्जन इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट पहले तुम ये देख लो, बिकॉज वंस यू लर्न द रॉन्ग वे टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट यू आर गॉन. तो पहले तो आप यही ध्यान दो कि इंस्ट्रूमेंट कैसे पकड़ते हैं. That actually matters a lot. I mean, I was thinking laparoscopy में ports ही सबसे important होगा ना. सबसे important ports है, and again as you said, how a surgeon holds the instrument, right. or how a surgeon uses that particular instrument. That is important to learn from him. Definitely. Also, sir, I don't know. हमारे साथ होता था when we used to do cases. तो वो केस फुल रिकॉर्ड होता था. देन आफ्टर द केस ड्रेसिंग हो गया, सब हो गया. 7 o'clock आवर बॉस यूज्ड टू सिट विद अस 1 by 1 कि तूने ये स्टेप गलत की. हमारा वीडियो प्ले होता था. अच्छा. तो स्टेप बाय स्टेप वी वर गाइडेड कि नाउ टुमारो तुम रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड मेक श्योर यू डोंट मेक अ मिस्टेक. सो दैट वीडियो गाइडेड टीचिंग वाज वेरी हेल्पफुल. दैट वाज वेरी हेल्पफुल सर हमको. So do you do like the same with laparoscopic teaching, sir? Now we have started taking fellows with us. Okay. For about 1 year. Right. For those fellows, we do these kind of things. We allow them to perform and then make them to present the same case. And then we make an assessment and tell them what they should have done. Barabar. That is important. So, you have given talks abroad, internationally, nationally, and you have spoken with surgeons throughout at the national level and international level. Where do you think, how are we doing as Nagpur as a city? What do we need to improve in terms of surgical things? There are a number of things which we are doing which are better than the different places. Oh, very nice. Most important thing which we lack is documentation. We have substantial data in Nagpur itself, but we have, I must say, we have no will to present it. I don't know why this happens, but then it is there. There are number of surgeons, reputed surgeons and skillful surgeons in different specialities. Some of them have definitely made their name on international level, national level, regional level. For, I would say, major part of surgeons who are doing good number of procedures are not inclined to present their work. मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड सर्कल में सर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है. काम करो घर जाओ, काम करो घर घूमने जाओ. When we go to conferences mostly to network, या ट्रेड में जो भी नई मशीन आई है कुछ खरीदना है वही करो. नॉट पता नहीं वाई है, वेरी डिफरेंट ट्रेंड इन आवर जनरेशन आई एम सीइंग. तो सर इंश्योरेंस इज़ अ वेरी बिग प्लेयर. जैसे आपने कहा नागपुर में 50% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है. डू यू हैव ओपन बिलिंग? We have open billing, we have package system, whatever. Nowadays there is a challenge to interact with the insurance companies, because one thing is that they are faceless.
There is no one person who takes all the decisions. बराबर. So we really do not know to whom to speak to. They would equate all the procedures in the same Category. manner, without understanding the intricacies, difficulties of a particular procedure. I would say a simple cholecystectomy or laparoscopic cholecystectomy can be as simple as it can be done in 10 to 12 minutes to 2.5 to 3 hours. Now, if there are difficulty levels in a particular procedure, you are spending more time, you are using more of your skills, your anesthesia time has increased, your operation theatre time has increased. So how can insurance company give same sanction for a 10-minute procedure versus a 2.5 hour procedure? तो कॉन्फ्लिक्ट आई तो थिंक होते ये ही रहता है कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है. अब वो अपने चीज़ पे अड़े रहते हैं, हम अपने चीज़ पे अड़े रहते हैं. बट ये थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज का अभी स्क्वीजिंग करना ज़्यादा शुरू हुआ है. दे हैव स्टार्टेड or they have appointed third party between the hospital and TPAs. their own company, TPAs. Now TPA has to generate his own profit, and for this all types of games are being, and we are unnecessarily being dragged into all this. तू पहिला अच्छा था हे पैसे दे बिल घे आणि तू दे तू बघत बस तुझं काय करायचं. आता तसं होत नाही. पण प्री अप्रूवल फाइनल अप्रूवल मध्ये कुछ तो चेंज होता होगा ना सर? होता है ना, चेंज होता है, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट यू वुड वांट इट टू. जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसीजर वो नहीं होता है. सो जैसे सर वी नो इन ऑफ्थल्मोलॉजी जो CGHS पेशेंट है दे विल गो टू या रेलवे का पेशेंट है दे विल गो टू देयर रिस्पेक्टिव उधर का OPD एंड देन सर्जरी करते हैं तो CGHS वाला डॉक्टर विल या whomsoever is guy is वो इधर जाओ में. They will. So people with private insurance, how do they do that? Somebody wants to get a surgery. How would they land up at Zenith or how would they land up at Viveka? There are two ways in which they can approach you. They will make a search online. उनके पास कौन सा इंश्योरेंस है और इसके पैनल में कितने हॉस्पिटल्स हैं. True. They will select you as one of the impaneled hospitals. That is one thing. Second is they will try and find out surgeon who is good in a particular procedure, and they will see where this surgeon is working. In case they find that surgeon working in already impaneled hospital, their problem is solved. If they find that the surgeon is not working in that hospital, they will request the surgeon कि आप वहाँ आके ऑपरेशन कर दोगे क्या. तो ये सब चीज़ें हो रही है. बट ओवरऑल अभी जो बड़े हॉस्पिटल्स है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, दे आर ऑलमोस्ट एम्पैनल्ड विद ईच एंड एवरी कंपनी. एंड आई थिंक मेरे को तो लगता है उनके दे हैव स्पेशल रेट्स आल्सो. They have a special rate. They have special rates with the companies. Some of these hospitals which started earlier, they have special rates. Right. Sir, don't you think nursing homes are dying? They're dead basically. Do you think nursing homes need to make a comeback? Nursing homes need to make a comeback is equivalent to having faith of the person into the doctor who is working in nursing home. हाँ. अब लोग क्या प्रॉब्लम क्या होता है, लोग आते नर्सिंग होम्स में है ट्रीटमेंट के लिए और फैसिलिटीज 5 स्टार वाली मांगते हैं, तो वो सब नर्सिंग होम में देना मुश्किल है. Right. Although what you get in nursing home is a personal care, very personalized, immediate attention to the patients. Although there are limitations to that small place, फिर भी doctors are easily accessible, available, and they would attend to you. I mean 20 years back sir, it was so commonly seen. नीचे नर्सिंग होम ऊपर घर.
डॉक्टर का, Yeah. है ना, तो डॉक्टर वही है. हाँ, इवन इफ इज गोइंग आउटसाइड, वहाँ पे स्टाफ है, इमरजेंसी है, नाइट Yeah. स्टाफ है, देयर इज समबडी ओवर देयर, इट इज़ गॉन. इनफैक्ट सर कॉर्पोरेट कल्चर से, जैसे आपने कहा ना कि इफ समबडी वांट्स टू डू सर्जरी फ्रॉम डॉक्टर मुकुंद ठाकुर, दे वुड से कि सर जहाँ ऑपरेट करते हैं हम वहाँ जाएंगे. बट व्हेन यू गो टू टियर 1 सिटीज, दे डोंट केयर अबाउट द डॉक्टर. हमको इस हॉस्पिटल में कराना है, कराना है बस. दैट्स इट. वी डोंट केयर हाँ. हु द डॉक्टर इज. इट्स सो डिफरेंट, सो डिफरेंट. Really. So how does it look like after 37 years when you look back? Could you have done something differently, sir? If I look back to my own career from 90 onwards, तो मुझे लगता है कि जो जो मैंने सोचा था वो उसमें से अबाउट 80-90% हो गया है. डन. Right. और लकीली एक बात हुई है कि जो जो इसमें अपग्रेडेशंस आते गए, नई चीज़ें आती गई, आई हैव अडॉप्टेड टू दैट. आई हैव अडॉप्टेड laparoscopy from general surgery and now robotic surgery from laparoscopy. So आज तक के जो भी मतलब मेरे प्रैक्टिस में हो सकता है वो सब मैं कर रहा हूँ. I am doing thoracoscopies, I am doing neck surgeries, I am doing abdominal procedures, anorectal procedures, everything. अभी इसके आगे की जनरेशन को ये चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी लोग स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं. अभी उनको चाहिए कि एनोरेक्टल प्रोसीजर्स ही करने वाला डॉक्टर चाहिए जिनके पास वो उनके प्रॉब्लम के लिए जाएंगे. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अ कंसेप्ट कि ये जनरल सर्जरी इन्वॉल्व्स एवरीथिंग. तो ये अभी का ट्रेंड होने लगा है. और दूसरा एक बात अभी मैं जो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट्स इज़ इंक्रीजिंग. At the same time, number of specialized surgeries is also increasing. Now there are, I mean, transplant surgery has become a different specialty. Then minimal access surgery has become different specialty. So people are now, I mean, the newer doctors or surgeons also have a choice after doing MS. as to which side he wishes to go. एक बार उन्होंने वो चूज कर लिया तो coming back to general surgery Not becomes possible. difficult. Not possible. Not possible. But we had Dr. Jay Deshmukh here. Yes. He made a point. The family physician is dying. कि the generalist doctor needs to make a comeback. Yeah. In this hyper specialization Yes, era, yes. he stressed on it a lot. कि वो पूरा खत्म हो गया system. I don't know. जनरल डॉक्टर बहुत बड़ा लैक्यूना हो गया है. हाँ. Every doctor wants to become a specialist and general practitioner is vanishing. Gone. Before I let you go, few questions. One surgery that you will never do again. I think I'll never go back to head neck again because Okay. initial practice I did few cases. राइट. रोबोटिक्स में सर अभी जो आ रहा है उसमें आई थिंक वो डा विंची सिस्टम का आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. हाँ, दा विंसी है, ह्यूगो है, मंत्रा है. वी हैव procured a system called as SSI Mantra, ओके. which is a completely Indian robot. वो नाइस. Yeah, being manufactured at New Delhi, and we have installed it at Viveka Hospital and finished already about 40 odd cases. Oh, lovely. So it's a different challenge. Ah. Again, to keep our own interest in the field, it is good to know newer things and attempt to do those things. I mean, from a completely open, say, close to minimal access Yes. to Now now robotic. robotics. I know. It's a very different journey. So where do you think Zenith Hospital 10 साल बाद, what do you think is happening to it?
I do not know. My second generation is already into practice. My daughter is a gynecologist. My son-in-law is a orthopedic surgeon. Another daughter is a dentist. She is following footsteps of her mother. I do not know. I have given them a free hand. I wish they take up this hospital to a different scale. Obviously. You have given a foundation and they'll take it up. Nice, sir. If not doctor, which profession would you pursue? Looking back. Difficult to imagine that I am not a doctor. Because I have never seen myself into engineering, never. But maybe my elder brother is in defense. He was in defense, he retired as a brigadier. So maybe I would have followed his footsteps. Any procedure जो अब तक नहीं किया है but you really want to do? Yes, robotic Whipple surgery. Oh my God. True. हाँ, अच्छा है. आपका प्री सर्जरी, हाउ डू यू प्रेप योर सेल्फ? Preparation I used to need a few years back before I had, because there are some cases which you do for the first time and then you try and make that SOP for that particular procedure. Watch different videos, interact with persons who has already done it. But now I don't think I need to do that. Whatever case comes up, I just imagine what could be there inside her abdomen or his abdomen, visualize his reports, and then make up my mind. I can start the procedure. Very That's nice. not a very difficult thing now. I am realizing this now, sir, after almost 13-14 years, Yeah. कि जितना स्पाइनल लेवल पे होता है ना उतना अच्छा होता है. अच्छा होता है. Don't try to control because you have trained your body parts to move in a certain Yes. way for so many years. Let them flow. Let them flow. वो बहुत अच्छा आउटकम मिलता है हमेशा. I have seen that कि I mean self realization That comes with only experience and practice. बराबर. And by patience. बराबर. So वो चीज कहीं बुक में लिखी हुई नहीं है. हाँ, नहीं है, You नहीं है. experience it and you follow. Very true. Thank you for so much being here, sir. I really enjoyed this conversation. You know, I got to ask you so many questions. Yeah, मजा even आया. I enjoyed it. Thank you. Great. Maybe I will call you again, sir. We will pick a छोटा सा topic and we will dissect it अच्छे से. Yes. चलो. Anything a topic of your choosing. Yeah. Thank you so much again, Thank you sir. so much. Right. Upon almost.